Suleiman was detained in Kerala for 3 days, and why he was not informed to media that Goa police achieved this achievement of arresting him, and why the 3 days was delay in informing media. अपोजिशन वो सीसीटीवी का डिमांड कर रहे हैं बार बार, उस पे आप क्या वो आप रिलीज करेंगे क्या? सुलेमान ने बोला है वैसा है, उसमें सब कोई पॉलिटिशियन आए हैं वैसे कुछ आपको दिखा है? वो सब चीज हम अभी आपको नहीं बता सकते। कंप्लेनेंट है उसको ही आपने सस्पेंड कर दिया है। So whether this case will stand in the law of नहीं उसका नहीं, हाँ सर, There are two different cases. जांच की सारी चीजें पुलिस शेयर नहीं कर सकती। आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? जितनी भी स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है सब आपने जवाब देने में बहुत टाइम लिया, इसलिए लोग कुछ भी सोच सकते हैं। This is now the second time the Goa police has been involved in a very high-profile case. The last being the Asilon case, where names of the former DGP in Goa were taken. Now that time we had no clarity as to what was happening in the investigation. One PI was suspended and he was reinstated again. And now again there have been allegations against the Goa police. So how do you? What is your opinion on this? Is there something underlying? Because it is the top level of the police that is being repeatedly being named in such cases. इस पे मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूँगा। Suleiman was detained in Kerala for 3 days, and why he was not informed to media that Goa police has achieved this achievement of arresting him, and why the 3 days was delay in informing media. Why it is taken 2 days to announce that he is arrested? Because No, accused. arrested, not to bring him back over here. But when he is arrested, why is taken 2 days to? Because there he was not arrested, he was detained only. Yes. But why this case was high profile case? Everybody was listening behind this case. Even if you arrest 10 grams of ganja, you immediately inform us that he has been arrested. What was the reason behind hiding from media for 3 days? इसमें सर आप कुछ बनाएंगे? नहीं, ये पहले एक जब टिप मिली हमें कि वहाँ पे ये हो सकता है, तो हम लोगों ने केरला पुलिस को बताया। ये 3 दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले कह सकते हैं, परसों शाम की बात है। और उसके बाद जब उसको डिटेन किया गया तो वी वांटेड टू बी डबली श्योर कि व्यक्ति वही है। हम अपनी टीम हमने भेजी, उसको टीम को ट्रैवल करने में भी टाइम लगा, कल पहुंचे वो लोग। तब तक वहाँ पे वो लोग अपना जो उनका फॉर्मेलिटीज थी प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो किया था। फिर उसके बाद जब उन्होंने रिलीज किया उसको, तब हमने उसको लिया। वी वांटेड टू बी श्योर दैट ही इज द सेम पर्सन, ही कम्स हियर, एंड उसके बाद फिर हम आपको फाइनली अनाउंस करेंगे। One video call would have sorted out your this thing, sir. उसको यहाँ Now, पे- whether he was really Suleiman or सेफली यहाँ पे लाना भी जरूरी है ना। Notorious criminal है। Notorious criminal है, बीच में हाँ, बात जब हम आपको पहले बता दें। और वी वांटेड कि एक बार गोवा में पहुंचे एंड देन वी ब्रेक दिस न्यूज। सो Sir, दैट other question is, the ठीक। last couple of days, there is a one system has been developed in police, that the moment accused comes in the police custody, video gets viral. Similarly, in Kallu's case, the video went viral after he was in police custody. The complaint was given 1 year back. Still, when the accused was in police custody, video was went viral. Second, now also, when last 2 days accused was in your custody, today there was a video viral by blaming this fellow, that fellow. So this is means you don't look this a serious concern in police department, or how you look this thing. फर्स्ट वी हैव टू सी, अगर आज वीडियो जो आया है वो वीडियो उसने कहाँ बनाया, कैसे बनाया, अभी पूछताछ में ये आएगा। उसके वायरल timing of the video. दैट आल्सो विल लुक इनटू कैसे हुआ है। And second thing, sir, Amit Naik, जो sir dismissed constable है, there was no single charge of bailable, non-bailable charges on him, which court observed that there is no section imposed non-bailable, so he was granted conditional bail. So what was the reason behind arresting him, sir? If police does not require his police custody, bailable offence was registered against him. So what was the reason behind arresting him? And then he bring that penalty. If he was died, then again police would have been in trouble. नो इंट्रोगेशन हुआ I think he is really dismissed from the job. So if the order is issued that he is dismissed from the job. No, he is dismissed from the job. But So how that's can- true. Yeah. But as far as जो मुरारी ने सवाल पूछा है, उसका मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन इसलिए रिक्वायर्ड थी कि उसने Bailable क्या offence था ना, sir. Bail, anyways, he would have got the bail immediately. नो दैट्स फाइन, बट हम लोग इसलिए उसको इंटरोगेट कर रहे थे बिकॉज उसने और कैसे किया है आगे Main उसका accused तक कैसे पहुंचे? हाँ कैसे मेन एक्यूज तक पहुंचेंगे तो उसका रास्ता तो मिलेगा जब उसको उससे पूछताछ करेंगे। एंड देन वी इमीडिएटली जब उसका पूछताछ करने के बाद उसको पेश किया है, देन कोर्ट ग्रांटेड बेल। क्योंकि ऑफेंस जब हम रजिस्टर करते हैं नॉर्मली इट इज, हम देखते हैं कि भाई बिहेवियर क्या था, कंडक्ट क्या था, उसके हिसाब से कौन से सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं, अकॉर्डिंगली वी अप्लाई सेक्शन, और जो सेक्शन उसके ऑफेंस पे अप्लाई हुआ था वही सेक्शन लगाएगा। सर, अमित को कितना ऑफर किया था ये? अभी तो सुलेमान से पूछेंगे। अभी पहले तो उसने जो अमित नायक ने कहा था कि हमें 3 करोड़ का इसने ऑफर दिया। और कुछ एडवांस मिला था सर, ऐसा कुछ है? अमित के इंट्रोगेशन से कुछ पता लगा कि कुछ नहीं, advance में सर? अमित ने तो जहाँ तक मेरी जानकारी डिनाई किया कि हमें अभी कुछ दिया है उसने।
Sir, is action being taken on the latest video that has gone viral? Are you all following? वी विल इन्वेस्टिगेट बोथ द वीडियो, पहले जो भी उसने दिया था उसको भी देखेंगे, अभी जो दिया है देखेंगे। बट हमेशा ये चीज ध्यान रखने का है कि ये व्यक्ति ने पहले जो वीडियो बनाया था वो भी हमने देखा था कि किस तरह के उसने एलिगेशन लगाए थे। अब जो वीडियो उसने बनाया इसमें भी देखेंगे कि ट्रुथ क्या है, एंड वी विल इन्वेस्टिगेट द ट्रुथ। आपने वो बोल रहे थे पहले बड़ा वीडियो एडिट किया है सर। ये अरे देखते हैं, विल गो थ्रू। उसका फोन भी उसका फोन है, चीज क्या है, अब उसमें क्या क्या बनाया, उसमें बनाया कहीं और बनाया। सो वी दिस इज ऑल अंडर यू नो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो 2 दिन से पहले बनाया था वो भी बनाया होगा। अभी ये सारा डिटेल नहीं है, अभी तो वो आपको मिल जाएगा सब। अभी ये सब डिटेल नहीं है, अभी तो ये बाद में सब्सिक्वेंटली आपको इन्फॉर्म करेंगे जब इन्वेस्टिगेशन। के वाइफ का नाम बताइए। अफसाना इलियास सारिका, अफसाना इलियास सारिका। सर सुलेमान ने कुछ ऑफिसरों के भी नाम दिया है, पुलिस ऑफिसरों के, उनका भी इन्वेस्टिगेशन होगा इस प्रोसेस में सर। पहले हम वीडियो की ऑथेंटिसिटी देखेंगे एंड उसके बाद जो उसका एलिगेशन है उसकी वेरिसिटी तो वेरासिटी तो उसके बाद ही देखी जाएगी। जिस डिवाइस से वीडियो दिया था वो आपने उसमें है मोबाइल में। अभी सीज है वो, उसकी फोरेंसिक जांच। सर सुनील कोठाकर और अमित पालेकर दोनों का भी 179 नोटिस दिया विच इज फॉर विटनेस, बट अभी तक जो उनसे क्वेश्चनिंग हुआ है क्या कुछ लगा है कि क्या विटनेसेस होंगे? नहीं, अभी जो पूछताछ हुई है वो ये बेसिकली हम एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि वीडियो का सोर्स क्या है, कहाँ कैसे पहुंचा। अभी पूछताछ उसके आसपास होगी। अभी जब ये आया इससे पूछेंगे कि इसके पीछे और पूछेंगे। आज का जो वीडियो है उसको अभी उसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। वीडियो जो आया था वो कांग्रेस आज प्रेसिडेंट ने बोला था इसको ला के दिया था, वो क्या बोल रहा है सर, किसको कैसे उसको कौन ला के दिया है? अभी देखो इसके बारे में इसकी फर्दर पूछताछ अभी होगी। सर वो क्या है? नहीं अभी होगी, आपको बताएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, उसमें जो भी जांच में चीजें सामने आएंगी, जांच की सारी चीजें पुलिस शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जांच में जो मोटे मोटे कंक्लूजन है वो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। आप लोग इतने दिन से प्राइवेट रिपोर्टिंग करते हैं, सो दैट यू नो सब चीजें अगर हम बता नहीं सकते क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का भी प्रोसेस होता है, वो जुडिशियल फाइल का भी पार्ट बन जाता है। बट एटलीस्ट कंक्लूजन वी टेंड टू यू। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसमें जो तथ्य सामने आएंगे वो आपके साथ शेयर करेगी। नहीं, ये केस तो ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन उस केस के का कर रही है। सो दिस इज लाइक नॉर्थ गोवा पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग दैट केस। ये पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी। नहीं मंत्रालय में किसी मीटिंग में गया, अदरवाइज ही वाज कॉल्ड हियर, बट देयर आर सम अर्जेंट मीटिंग, देयर आर सम प्रॉब्लम्स। अपोजिशन को सीसीटीवी का डिमांड कर रही है, उस पे आप क्या रिलीज करेंगे क्या? पहले हम अपनी जांच करेंगे, हमारी भी इंक्वायरी चल रही है, पहले वो जांच करेंगे और उसके बाद ये कोई क्या उसके अंदर में है नहीं है वो दिखाना है नहीं दिखाना है। हमें सीसीटीवी फुटेज है, अभी जो एसपीईओसी इंक्वायरी कर रही है उस इंक्वायरी का वो पार्ट है, इसलिए अभी शेयर नहीं कर सकते। सुलेमान ने बोला है वैसा है, उसमें सब कोई पॉलिटिशियन आए वैसा कुछ आपको दिखा है? वो सब चीज हम अभी आपको नहीं बता सकते, वो इंक्वायरी करेंगे, वैसा हालांकि कुछ है नहीं, और इंक्वायरी हो जाने दीजिए। नहीं है, कुछ नहीं है, सर। नहीं है सर अभी जो आपने बिल्कुल नहीं है सर, इतनी बात मैं आपको बता सकता हूँ, जो चीजें उसने कही थी वो नहीं है। सर अभी तो आपने अभी जो तो रिलीज किया उसकी बात पे क्या बोलना चाहते हैं? वो भी सही है? इसके बारे में अभी उससे पूछताछ नहीं हुई। अभी तो हमने अभी तो पहुंचेगा पूछताछ। सर आपने अभी इस व्यक्ति को अरेस्ट किया वोलीबॉल केस में, जो कंप्लेनेंट है उसको ही आपने सस्पेंड कर दिया है। सो वेदर दिस केस विल स्टैंड इन द लॉ नहीं, उसका नहीं। हाँ सर, There are two different cases. because you Which are will stand? ये दोनों दो अलग मैटर है। Given your statement that when he was in when that accused was in locker and when he was on duty, he was sleeping at home. So based on that, you have suspended him, and now he is a complainant in that case. So when, as a legal, I'm asking sir whether this case will stand or what will be the. ये जो क्रिमिनल केस है और उस पर जो डिपार्टमेंटल एक्शन है, दोनों डिफरेंट मैटर्स है। क्रिमिनल केस ये है कि ये पुलिस कस्टडी में था और पुलिस कस्टडी से निकल के भाग गया, ही बीइंग दैट क्या उसको बोलते हैं ड्यूटी अफसर, सो वो उसका नेग्लिजेंस था, ये प्राइमा फेसाई, हाँ प्राइमा फेसाई उसका नेग्लिजेंस था, भाग गया। और क्रिमिनल केस के अंदर में उससे जो डिपार्टमेंटल एक्शन है, क्रिमिनल केस उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके डिपार्टमेंटल एक्शन लेने से क्रिमिनल केस कोई कमजोर हो जाएगा, उसमें ऐसा अगर ये शुरू हुई है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो वो दोनों के खिलाफ तो हुई होगी, लेकिन अदर ऑफिसर्स हैव बीन नेम्ड, दे आर आल्सो अभी वो प्राइमा फेसाई जिनकी दिख रही थी कि भाई जिनकी गलती है उनको सस्पेंड किया गया है, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जब चलेगी तो उसमें पता चलेगा कि इनकी कितनी गलती है, उसके हिसाब से उनकी सजा मिलेगी। पर अभी जो एक मेन इंक्वायरी एसपीईओसी कर रही है कि इसमें क्या इश्यूज हैं और हम क्या कर सकते हैं जिससे आगे कोई ये घटना भी ना हो, तो वो इंक्वायरी कंक्लूड होगी तो उसके अंदर और भी जो तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। ये टाइम बाउंड होगा, इंक्वायरी टाइम बाउंड होगी या चलती रहेगी? नहीं, टाइम बाउंड प्रोसीजरल इंक्वायरी में टाइम थोड़ा सा लगता है। कब तक मिलेगा सर रिपोर्ट?
अभी मैं आपको पर्टिकुलर डेट तो नहीं, उतना नहीं लगेगा, उसके पहले आ जाएगा वो आपको इतने ऐसी बात नहीं कि 1-2 महीना लगेगा अभी तो। Whether this inquiry will encompass everything that has come out in the public, including the names of the officers that he has taken in the video. अभी उस इंक्वायरी में वो 3 दिन का सीसीटीवी फुटेज भी वो देख लेंगे और उसके आधार पे जो चीजें सामने आएंगी उसमें जो जिसकी गलती पाई जाएगी या जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आंसर वो तो प्रोसीजरल लैप्स हो गया। हाँ। जिसके नाम लिए वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंक्वायरी। नहीं वो जो अब जो वीडियो उसका पहला है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट इंक्वायरी, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर सुलेमान ने जो नाम लिया वीडियो में वो आप कह रहे हैं कि वो एक criminal आपको मैं इतना तो बता ही दूं कि जैसे उसने बताया कि 12 पुलिस अफसर उसको एस्कॉर्ट करके ले गए, ये बिल्कुल ही झूठी बात है और क्रिमिनल्स की ऐसी बातों पे तवज्जो ऐसे देना नहीं चाहिए। पर ये हमने तो सीसीटीवी फुटेज सेम डे देख लिया था, एक ही व्यक्ति लेके गया है, 12 व्यक्ति गए होते तो 12 लोग सस्पेंड हो गए होते। तो जिस चीज को जिस तथ्य को जितना देखिए क्या है कि पुलिस ऑफिसर्स हम लोग काफी मर्यादा से बंधे होते हैं, कंडक्ट रूल से बंधे होते हैं, हर चीज का जवाब वो लोग दे नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बातें कही जा रही है वो सब सत्य है, बहुत कुछ कहा गया है इस बीच में, लेकिन गोवा पुलिस ने बड़ी मेहनत से काम किया। एक व्यक्ति अगर हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऐसा है जिसने कोई मिसकंडक्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे डिपार्टमेंट को ब्रांड कर दे कि इनएफिशिएंट है, करप्ट है और मेल प्रैक्टिसेज में, ऐसे नहीं है। अगर गोवा पुलिस ऐसी होती तो हम इतनी जल्दी, पहले भी हमने 3 महीने की बहुत ही अथक मेहनत के बाद उसको पकड़ा था और कंटिन्यूअसली एसपी क्राइम उस काम को कर रहे थे, मैं मॉनिटर पर्सनली कर रहा था, आईजी साहब मॉनिटर कर रहे थे और अगस्त से नवंबर तक की बहुत मेहनत के बाद उसको पकड़ा गया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही ब्लाइंड थे उस समय, क्योंकि हमारे पास ज्यादा क्लूज नहीं थे और वो मेहनत हमें अभी काम आई। लेकिन हम लोगों को भी बहुत तकलीफ हुई जब हमारी 3 मेहनत की पानी डिपार्टमेंट की मेहनत पे एक जो गोवा का टॉप क्रिमिनल है उसको हमारे एक कांस्टेबल ने अपने ग्रीड में कहे या किसी और मोटिव के तहत उसको भगा, लेकिन उस चीज को आगे ना हो, हमारे लोग आगे फिर इस तरह की हरकत ना करें, कैसे उनके ऊपर सुपरविजन बढ़ाया जाए, कैसे उनको हम मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके सो दैट वो इस तरह की भीड़ में न फंसे, इन सब चीजों पे सोच विचार करना ज्यादा फंडामेंटल है और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। But this is now the second time the Goa police have been involved in a very high-profile case. The last being the Asilon case, where names of the former DGP in Goa were taken. Now that time we had no clarity as to what was happening in the investigation. One PI was suspended and he was reinstated again, and now again there have been allegations against the Goa police. So how do you? What is your opinion on this? Is there something underlying? Because it is the top level of the police that is being repeatedly being named in such cases. इस पे मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूँगा। थैंक यू। सर एक कस्टडी बार-बार बताया जा रहा है कि कस्टडी क्राइम ब्रांच से नहीं की, तो कस्टडी किसकी है? नहीं, क्राइम ब्रांच की कस्टडी थी, हाँ तो वो इंक्वायरी में आने दीजिए, वो सब बातें हम आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे जो कहीं पर पूछा गया था कि पुलिस स्टेशन का है। बताओ क्या है? वो जो बिल्डिंग है लॉकअप पुलिस का है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। देखिए इसमें ये जो है ना टेक्निकल जो कस्टडी है वो क्राइम ब्रांच की है, ठीक है ना, जो पुलिस कस्टडी थी वो क्राइम ब्रांच की थी। अब वो लॉकअप कोई भी हो सकता है, पंजाब पुलिस में भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, और गार्ड उस समय कोई भी हो सकता है, जैसे आईआर बटालियन की गार्ड थी, तो वो इस तरह का एक ऑपरेशनल चीजें चलती है। उसको 1 महीने तक जो पीसी में रखा था, तो वो कौन से केस में था? वो 3 लैंड करने हाँ मैंने बताया कि हम लोग बीच पहले एसपी साहब इसको ब्रीफ कर चुके हैं, बीच में लगातार नहीं रखा, वो जेसी में भी रहा है, 10 से ज्यादा दिन जेसी में भी रहा है वो। फिर ऑफेंस रजिस्टर करके नहीं, ऑफेंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, उसको फॉर्मली अरेस्ट दोबारा किया गया, उसमें फिर पीसी में लिया गया उसको। आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? जितनी भी स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है सब आपने जवाब देने में बहुत टाइम लिया, इसलिए लोग कुछ भी सोच सकते हैं। नहीं जवाब देने का टाइम नहीं, मैं पहले सोच रहा था इसका जवाब दूं या ना दूं, क्योंकि कुछ जवाब दो तब भी कंट्रोवर्सी है, ना दो तब भी कंट्रोवर्सी है, रीडिंग बिटवीन लाइंस बहुत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल कानून की मर्यादा में बनकर काम करते हैं और जो उचित होता है वही कार्रवाई करते हैं। सुलेमान को अरेस्ट किया वो सीएम ने बताया, आप ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये सब डिसीजन लिए जाते हैं और इसके पीछे हर डिसीजन के पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस था तो इसके अंदर में ये लगातार आ रहा था मीडिया में, यहाँ वहाँ तमाम चीजें, तो उनको भी नहीं है। ये देखिए ये सब चीजें तो ये पता नहीं, आई विल नॉट कमेंट। During this entire case investigation, there was one factor that happened for us. There was no communication that was forthcoming from your end. Even when he was there was no communication. वो फरार हुआ वो टाइम आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक्चुअली आपका एफआरओ बहुत एक्टिव है, पीआरओ अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा इन्फॉर्मेशन पास तीनों आउट के करता बीच में है। थोड़े आप इनएक्टिव हो गए। नहीं एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग अपने काम पे ध्यान दे रहे थे उस समय, तो उस समय हम अगर जैसे जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था उस दिन हमने एक शॉर्ट प्रेस नोट बना के भेजा था कि हमने कैसे उस पर, हाँ प्रेस नहीं लिया, प्रेस सेम थिंग।
इट्स द सेम थिंग। फरारी में नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। हाँ, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे मान लो कोई सीरियस केस हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, पर इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मली भी आपको फोन से बता देते हैं। और बीच का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अगर आपको कहीं हम शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन के बाद कंप्रोमाइज अभी 13